آپ سب کو گڈ نیوز چرچ میں ویلکم کہتا ہوں. ویلکم. گاڈ بلیس یو. آج میں آپ کے سامنے بائبل کے کرداروں میں سے ایک بہت اہم کردار آپ کے سامنے رکھوں گا اور وہ ہے یوحنا رسول, جان دا اپوسٹل یا جان دا ڈسائپل, اور اسے اپوسٹل آف لو یعنی محبت کا رسول بھی کہا جاتا ہے. آیت پڑھیں گے یوحنا کی انجیل 13واں باب اور اس کی 23ویں آیت. یہاں لکھا ہے, اس کے شاگردوں میں سے ایک شخص جس سے یسوع محبت رکھتا تھا, یسوع کے سینے کی طرف جھکا ہوا کھانا کھانے بیٹھا تھا. ایک شخص ہے, رائٹر, یوحنا کی کتاب کا رائٹر کہتا ہے, ایک شخص جس سے یسوع محبت رکھتا تھا, یسوع کے سینے کے سہارے جو ہے وہ بیٹھا تھا, سینے کے ساتھ اپنا سر رکھ کے اور کھانا کھانے بیٹھا تھا. یہ یوحنا کی انجیل کا جو رائٹر ہے یہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے. اچھا, پیار تو یسوع سب سے کرتا تھا, یہودا اسکریوتی سے بھی. اس نے کیوں کہہ دیا کہ جس سے یسوع محبت کرتا ہے اپنے بارے میں کہہ رہا ہے؟ کیوں؟ ہر بچے کو ایسے لگتا ہے کہ میرا باپ مجھے زیادہ پیار کرتا ہے. کیا خیال ہے؟ ویسے میں اپنا بتاتا ہوں, میرے ماں باپ کا مجھے پتا تھا کہ وہ مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں, اور میری بہنیں اور بھائی اپنے اپنے بارے میں سوچتے تھے نہیں مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں. میں سوچتا تھا مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں. آپ کو بھی ایسا لگتا ہے؟ ہلو, ہاں جی, آپ کو بھی ایسا لگتا ہے. تو یوحنا کو بھی دراصل ایسا لگا کہ یسوع مسیح سب سے زیادہ اس سے پیار کرتا ہے, اور یوحنا نے اپنا نام بھی لکھا کہ وہ کون ہے, اور وہ کہتا ہے ایک شخص جس سے یسوع محبت کرتا تھا, یسوع کے سینے کی طرف جھکا ہوا کھانا کھانے بیٹھا تھا. یہ وہی شاگرد ہے جس کو مشہور نام دیا گیا ہے. اس کے دونوں بھائیوں کو, یوحنا اور یعقوب, دونوں یسوع کے شاگرد تھے. ان کا ایک مشہور نام ہے, اگر آپ کو پتا ہو, دونوں کا اکٹھا. کسی کو پتا کیا؟ سنس آف تھنڈر, گرج کے فرزند. یہ ان کو ایک نام دیا گیا تھا, گرج, تھنڈر, گرج کے فرزند. اور یہ وہی یوحنا ہے جس کی ماں نے یسوع سے کہا, اے یسوع جب تو بادشاہی کرنے آئے میرے ایک بیٹے کو اپنے دائیں طرف اٹھانا, ایک طرف ایک کو بائیں. کیونکہ دوسرا بھی شاگرد تھا, یوحنا اور یعقوب دونوں بھائی تھے. تو میں آپ کو پتہ چل گیا کس یوحنا کی بات کر رہا ہوں. تو آئیے اب اس شاگرد کی بابت بہت سی اہم باتیں سیکھتے ہیں. یوحنا جو ہے یہ اور اس کا بھائی یعقوب, ان کے باپ کا نام تھا زبدی. کیا نام تھا؟ زبدی. اور ماں کا نام تھا سلومی. اور یہ بیت صدا نامی گاؤں کے رہنے والے تھے. موجودہ اسرائیل میں بیت صدا ابھی بھی ہے, یہاں کے رہنے والے تھے. اور یوحنا جو نام ہے یہ عبرانی نام ہے, اور اس کا مطلب ہے God is gracious. یہوہ پرفضل ہے, خدا فضل کرنے والا ہے, یہ اس کے نام کا مطلب ہے. اور اس کی بلاہٹ کیسے ہوئی, یہ کیسے بلایا گیا, اور میں پڑھوں گا اس کی بلاہٹ کیسے ہوئی, کیسے یسوع نے اس کو بلایا شاگرد بننے کے لیے. مرکز کی انجیل پہلا باب اور اس کی 19ویں اور 20ویں آیت. اور تھوڑی دور ہٹ کر اس نے زبدی کے بیٹے یعقوب اور یوحنا کو کشتی پر جالوں کی مرمت کرتے دیکھا, کیونکہ وہ ماہی گیر تھے. اس نے فوراً ان کو بلایا اور وہ فی الفور اپنے باپ زبدی کو کشتی پر مزدوروں کے ساتھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے. بلاہٹ بڑی عجیب ہے. مچھلی پکڑنے کے لیے کشتی تیار کر رہے تھے, مزدور مچھلی یہ جو کشتی کو تیار کر رہے تھے اس کی مرمت کر رہے تھے. یوحنا اور یعقوب دونوں اکٹھے پاس تھے, باپ بھی پاس تھا. ادھر سے یسوع مسیح آ گیا اور یسوع نے کہا, یوحنا, یعقوب, کم آن, میرے پیچھے ہو. اور دونوں ہی اپنے باپ کو بھی چھوڑ کر, کشتی کو چھوڑ کے, مزدوروں کو چھوڑ کے, اور یہ بھی بھول کر کہ مچھلیاں پکڑنے آئے ہیں, یسوع مسیح کے پیچھے ہو گئے. یہ امیڈیٹ فوری obedience ہے, فوراً فرما برداری. جیسے یسوع
कम, और कहा मेरे पीछे चले आओ। वो दोनों अपने बाप को और जाल को और मछलियों को, और मछली को भी पकड़ी दी है, मजदूरों को छोड़ के यीशु के पीछे हो गए। और यूहन्ना ही अपने इंजील में, और यूहन्ना ही अपनी इंजील में लिखता है यीशु के बारे में कि यीशु कहते हैं अगर कोई मेरा शागिर्द बनना चाहे तो अपने बाप से, अपनी माँ से, अपनी बीवी से, अपने हस्बैंड से, अपने बहन भाइयों से, अपने रिश्तेदारों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखे तो मेरा शागिर्द हो सकता है। और ये शागिर्द कभी बना भी नहीं है, उसने ये साबित कर दिया, यीशु के पीछे हो गया। जरा यूहन्ना के लिए तालियां हो जाती है। 3 नाम अक्सर इकट्ठे यूहन्ना की जीव में, बल्कि चारों जीव में 3 नाम अक्सर इकट्ठे आए हैं। कौन कौन से? पतरस, यूहन्ना और याकूब। तीनों के नाम बहुत दफा इकट्ठे आए हैं, और ये तीनों अक्सर वाकयात में यीशु के साथ थे। 12 के 12 शागिर्द यीशु के साथ थे, लेकिन ये खुसूसन यीशु के ज्यादा करीब थे। मसलन मत्ती की इंजील में एक वाकया है, यीशु मसीह की सूरत बदल गई। आपको याद है जब यीशु की सूरत बदल गई तो यीशु को देखा गया कि वो मूसा और एलिया के साथ खड़ा है, और 3 शख्स उस वक्त थे यीशु के साथ। कौन? पतरस, यूहन्ना और याकूब। 2 सगे भाई हैं, याकूब और यूहन्ना और पतरस, ये तीनों उसके साथ थे। फिर यायर की बेटी को जिंदा करने का एक मौजज़ा जब होना था, तब ये तीनों इकट्ठे थे। कोई समझता रहे कि ये फेवर है, ये फेवर नहीं है। बंदे की जो एबिलिटी है, उसका जो किरदार है, उसका जो ताल्लुक है, उसका जो रिश्ता है, उसकी जो कुर्बत है, उसकी जो डेडिकेशन है, उसको देखा जाता है। तीनों को उसने हमरा दिया और किसी और को साथ लेके नहीं गया। और फिर वो यायर की बेटी जो मर गई थी उनके पास गए और यीशु ने कहा तलीता कूमी, ए लड़की उठ, और लड़की जिंदा हो गई। प्रेज द लॉर्ड कहिए, बोलिए प्रेज द लॉर्ड, सब कहिए प्रेज द लॉर्ड। फिर एक और वाकया, दुआ के वक्त पतरस और यूहन्ना और याकूब गेत्सेमनी की बाग में यीशु के साथ थे, तो ये तीनों हर वक्त साथ होते थे। फिर यीशु मसीह आखिरी ज़माने के बारे में तालीम दे रहा था, तो 3 शागिर्द, बल्कि अब 4 हो गए, पतरस, यूहन्ना, याकूब और साथ अंद्रयास की 4 शागिर्द अलहदा से तन्हाई में यीशु के पास गए। ये चारों तन्हाई में यीशु के पास गए, कह रहे खुदावन हमें जरा समझा दे कि तेरे आने का वक्त क्या होगा, तू कब आएगा। तो ये ऐसे शागिर्द हैं जो तन्हा भी यीशु से मिलते थे, बड़ा गहरा रिश्ता था जिनमें ये यूहन्ना मौजूद है। और ये वाक्य आपको मिलेगा मत्ती की इंजील के 24वें बाब में और मरकुस की इंजील के 13वें बाब में। पतरस और यूहन्ना फिर हमें इकट्ठे नजर आएंगे। यीशु मसीह ने जब शायरबानी की इबादत करवानी थी, जिसको हम कहते हैं आखिरी फसह की इबादत, तब भी यीशु ने 2 शागिर्दों को भेजा। पतरस और यूहन्ना को यीशु मसीह ने भेजा कि जाओ, सामने के गांव में जाओगे, तुम्हें एक शख्स घड़ा लिए हुए मिलेगा, उसके पीछे पीछे चले जाना, जिस घर में दाखिल हो उस घर में दाखिल होना और कहना कि बता हम मालिक के लिए इशार तैयार करना चाहते हैं, आप इस फसह की कुर्बानी की तैयारी करना चाहते हैं, कौन से कमरे में जाए। तो 2 शागिर्दों को भेजा था जिनमें यूहन्ना भी था। तो इसका मतलब ये गहरा इनके साथ बड़ा गहरा रिश्ता है। यीशु ने अहम जिम्मेदारियां भी ऐसे ही शख्सों को दी थी। अब मेरी तरफ देखिए, चर्चिस में पास्टर्स और इंतजामिया कुछ लोगों को अपने ज्यादा करीब रखते हैं, उनको जिम्मेदारियां दे देते हैं। वजह क्या है? पास्टर जो है उनको खुदावंद ने अकल, लड़ाई, फहम दिया हुआ है, रुल्स उसकी हदायत दी हुई है। वो ऐसे ही हर एक को अपने साथ अहम जिम्मेदारियों में शामिल नहीं करते। उन्हें पता होता है कि कौन है ये जिम्मेदारी को पूरा करेगा। ऐसे ही यीशु ने कहा देख तेरी माँ ये, माँ से कहा देख तेरा बेटा ये, उनको सुपुर्द किया। और उसी वक्त यूहन्ना जो है वो मरियम को साथ ले गया और वो उसके साथ रही। तो ये बड़ी जिम्मेदारी थी, खास जिम्मेदारी जो उसने दी। जब यीशु ने यूहन्ना को जिम्मेदारी दी कि वो मरियम को अपने घर ले जाए, उस वक्त यूसुफ और मरियम के बेटे मुसीबत ईमान नहीं लाए थे, गैर ईमानदार थे।
कैसे यीशु मसीह अपनी मां को गैर ईमानदारों के हवाले कर देता? समझ आ रही है? ईमानदार के हवाले किया यूहन्ना ने। बोले हालेलुया। अपने सगे भाइयों के हवाले नहीं किया। लेकिन एक बात सुन लीजिए, यीशु मसीह के आसमान में जाने के बाद सगे भाई भी मसीह पर ईमान लाए और वो भी मसीह के लिए शहीद हुए, लेकिन अब जिम्मेदार देने का जो वक्त है वो नहीं थे। हम यूहन्ना की बात कर रहे हैं। गेत्सेमनी में साथ है, सलीब के भी करीब यीशु के साथ खड़ा है। और जब यीशु जी उठा, हेलो, जब यीशु जी उठा तो जब खबर मिली कि कब्र खाली है, सबसे पहले जो भाग के कब्र पे गए हैं वो यूहन्ना और पतरस थे, बाकी पीछे थे। ये भाग कर गए, जाके कब्र देखी कि वाकई खाली है। बोले हालेलुया, वेरी गुड, शाबाश। और उसके बाद यीशु आसमान पे चला गया। फिर रूह का बपतिस्मा मिला, सब शागिर्द आसमान में बोलने लगे। और उसके बाद इमाम की किताब के 30वें बाब में सुनिए क्या हुआ। पतरस और यूहन्ना फिर हमें दोनों इकट्ठे नजर आ रहे हैं। तीसरी बात, इमाम की किताब के पहली आयत से पढ़ना शुरू करें तो आपको पता चलेगा। पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त हैकल में जा रहे थे। और जब जा रहे थे तो हैकल के दरवाजे में एक लंगड़ा था, जन्म का लंगड़ा। उसने अपना हाथ बढ़ाया कि कुछ भीख मिल जाए। पतरस ने कहा, सोना चांदी तो हमारे पास है नहीं, जो कुछ है तुझे दिए देते हैं, उठ यीशु के नाम से चल फिर। और वो यीशु नासी के नाम से चल फिर। हालेलुया, हालेलुया। तो ये पहला मौका, आप कहेंगे पहला तो नहीं, पहला तो हो गया था कनेगरी में। ये मैंने कैसे कह दिया पहला मौका? शागिर्दों के वसीला से यीशु के आसमान में जाने के बाद पहला मौका जब हुआ, पतरस और यूहन्ना इकट्ठे थे और एक जन्म का लंगड़ा जो है वो शफा हो गया। फिर चौथे बाब में हम चलते हैं, यूहन्ना की इमाम की किताब के चौथे बाब में। मैं यूहन्ना के बारे में बयान कर रहा हूं। यूहन्ना और पतरस का नाम फिर बैठा आ गया। यूहन्ना और पतरस दिलेरी से कलाम सुना रहे थे कि दोनों को गिरफ्तार कर लिया, हवालात में बंद कर दिया। फिर हवालात से बाहर निकाला और कहा, आइंदा यीशु का नाम लेकर मुनादी न करना, हम तुम्हें छोड़ देते हैं। गारंटी क्या मांगी कि आइंदा यीशु का नाम लेकर मुनादी न करना, हम छोड़ देते हैं। जवाब बड़ा खूबसूरत था। देखिए इमाम की किताब चौथा बाब और 12वीं आयत। और ये दोनों इकट्ठे हैं और उन्होंने क्या कहा, और किसी दूसरे के वसीले से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से आप निजात पा सके। हालेलुया। किस कदर दिलेरी है यूहन्ना में, किस कदर दिलेरी है पतरस में। कभी हवालात से निकाला है, खौफ नहीं होने, फिर बंद कर देंगे। और कहा भी है कि खबरदार दोबारा नाम लेके नाम नादी करना। क्या लगे कैसी बात करते हो, ये कैसे मुमकिन है हम खुदा की बात को छोड़ के इंसानों की बात माने। इतनी दिलेरी। और जब दिलेरी उनकी देखी तो अगली आयत देखिए, इमाम की किताब चौथा बाब 13वीं आयत। यहां लिखा है, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना की दिलेरी देखी और मालूम किया कि ये अनपढ़ और नावाकिफ आदमी है, तो ताज्जुब किया। फिर उन्हें पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। हालेलुया। कम तालीम में परेशान ना हो, थोड़ी तालीम में परेशान ना हो, मैट्रिक डिग्री की परेशान ना हो, 5वीं नहीं पास की, अनपढ़ है या हाईली एजुकेटेड है, मत परेशान हो। अगर यीशु के साथ रहे हैं तो लोग पहचान देंगे ये यीशु के साथ रहने वाले हैं। अब मैं यूहन्ना की बाबत और आगे चला चलूंगा। आपको याद है कि यीशु मसीह ने यूहन्ना को एक जिम्मेदारी दी थी, अपनी मां उसके हवाले कर दी थी। आपको याद है? तो यूहन्ना जब वहां से यरूशलेम से गया खिदमत के लिए, मिशनरी काम के लिए, तो वो इफिसस में चला गया जो आजकल तुर्की में है, इफिसस में। और मुकद्दसा मरियम साथ थी। और कहा जाता है कि मुकद्दसा मरियम की डेथ वहीं पे इफिसस में हुई थी और वहीं उनका मज़ार भी है। और इफिसस में यूहन्ना ने एक नहीं कई कलीसियाएं कायम कर दी। बोले हालेलुया। इससे पहले इफिसस में जो पौलुस रसूल है वो भी कलीसिया कायम कर चुका है। और जब यूहन्ना वहां गया, इससे और
कायम कर दी। बोले हालेलुया। और इतना बुरा, सारे शागिर्द मर चुके थे, उम्र 90 साल की करीब हो गई थी, एक ही शागिर्द जिंदा है, एक ही गवाह है जिसने यीशु मसीह के मरने को देखा, जीवने को देखा, जिसने रूह के बपतिस्मे का तजुर्बा किया, जिसने अपनी आंखों से मौत से देखे। एक ही शागिर्द रह गया है, बाकी सब मर गए हैं। और चूंकि ये एक ही रह गया था, इसलिए आसपास की दूसरी कलीसियाएं उसे बुलाती थी और कहती थी, जरा बता यीशु मसीह कैसा था, उसका चेहरा कैसा था, वो तालीम कैसे देता था, जरा उसकी मौसी को सुना। तो इसको बूढ़े शख्स को भी जगह जगह जाके मुनादी करनी पड़ती थी और इस सिलसिले में ये काम करता था। बोले हालेलुया। फिर क्या हुआ? ये हुआ कि इसको सजा के तौर पे रोमियो ने, पूरी दुनिया में रोम की हुकूमत थी, रोमियो ने तुर्की से निकाला कि ये तो सबको क्रिश्चियन करता चला जा रहा है, ये तो बुतप्रस्तों को मसीह के पास ला रहा है। इसको उन्होंने एक जजीरे में, टापू में, आइलैंड में भेज दिया जिसका नाम था पैटमोस या पतमोस, उसको भेज दिया। और ये सोचा कि चले ये खुद ही वहां मर जाएगा, वहां पानी सही नहीं है, वहां खुराक सही नहीं है, आसपास ना बंदा ना बंदे की जात, ये खुद ही मर जाएगा। लेकिन सुनिए, इफ्सुस में खिदमत करता था, पैटमोस में जजीरे ने सजा के तौर पे भेज दिया। और जब भेज दिया, वहां रहकर यीशु मसीह खुद इससे मिला पर्सनली, वही यीशु जो इसके साथ रहता था पर्सनली मिला और उसने कहा लिख ले जो कुछ मैं तुझे बताता हूँ, जो कुछ तू देखता है उसे लिख ले। और ये लिखता गया और वो काशवा की किताब उससे लिखी। बोले हालेलुया। कहां जहां कुछ नहीं था, खुदा मुहैया करता है, कागज भी मिल गया, जो कुछ उस जमाने में जो कमाल थे वो भी मिल गए, लिखने के लिए कमाल भी मिल गया, लिखने के लिए कलम, सब कुछ खुदा ने मुहैया किया और वह उसने काशवा की किताब लिखी। बोले हालेलुया। बोले हालेलुया। आज हमारे हाथ में काशवा की किताब है। इसके बारे में पतमोस के जजीरे के बारे में और अपने बारे में यूहन्ना क्या कहता है, आइए पढ़ते हैं। यूहन्ना की मुकाशवा की किताब पहला बाब 9वीं आयत, क्योंकि ये मुकाशवा भी उसी ने लिखा है। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई, सच में ये लिखा, मैं यूहन्ना राइट रेवरेंड डॉक्टर बिशप आली जनाब आली मर्तबर यूहन्ना बिन सब्ती। आजकल यही होता है ना भाई कि जब किसी पादरी साहब को लाते, मुझे तो शर्म आती है, मुझे ले गए आली जनाब बिशप डॉक्टर रियासत साहब आएंगे, भाई खड़े हो जाए, तालियां हो जाए, काम सुनाएं, मुझे शर्म आती है। मैं कहता यार मुझे सीधा साधा कहे भाई रियासत आएंगे, कलाम सुनाएंगे। तो ये अपना तारुफ क्या कर रहा है, क्या तारुफ कर रहा है, बोलिए इसे क्या तारुफ कराया? कहते हैं मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु मसीह की मुसीबत और बादशाही और सब्र में तुम्हारा शरीक हूं, खुदा के कलाम और यीशु की निस्बत गवाही देने के बायस उस टापू में था जो पतमोस कहलाता है। वो अपने बताया कि जजीरे में मैं कैद था। बोले हालेलुया। कहिए हालेलुया। और पतमोस के जजीरे में मैंने कहा जाता है कि सिर्फ मुकाशवा नहीं, कहा यह जाता है कि यूहन्ना की इंजील और यूहन्ना के 3 खत, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना भी उसने पतमोस में ही लिखे थे। मैंने कहा जाता है। तो तीनों खतूत, यूहन्ना का पहला खत, यूहन्ना का दूसरा खत, यूहन्ना का तीसरा खत, यूहन्ना की इंजील, मुकाशवा, ये यूहन्ना ने तहरीर की है। अब सुनिए, यूहन्ना एक ऐसा शख्स है जिसको कई दफा शहीद करना चाहा कि इसकी जान ले, मर जाए। ये शख्स जो इतना बूढ़ा हो गया, 90-95 साल का भी हो के अभी तक लोगों को मसीह के पास लेके आ रहा है। बड़ी दफा कोशिश की कि ये मर जाए, शहीद हो जाए, लेकिन वो शहीद नहीं होता था क्योंकि खुदा का मकसद कुछ और था। उसने यीशु मसीह के लिए ऐसा रसानी सही दुख से रोम में गया। वो जब वो रोम में था तो रोमियों ने जलते हुए तेज कड़ा में जिसमें तेल था, नीचे समझे कि लकड़ियां दहक रही है, आग जल रही है, ऊपर एक कड़ा है, उसके अंदर तेल है जो उबल रहा है, इसे उस उबलते हुए कड़ा में डाल दिया गया। लेकिन अभी वक्त नहीं था, अभी तो बड़े काम कर नहीं, पतमोस का वाकया बाद का है, अभी तो बड़े काम कर रहे हैं। इधर से डाला और उधर से निकाला तो वो ऐसे था जैसे सदर पुलिस कवर में जो के बालों के से में से स्मेल नहीं आती थी, जैसे कि आग लगी, ऐसे ही सीधा बाहर आ गया। तो उन्होंने कहा भाई ये नहीं मरना,
अपने मर जाएगा। और वहां गया, वहां उसने खिदमत की। बोले हालेलुया। फिर जब और कोई बादशाह आया रोम का, उसने कहा उसको आजाद कर दो। जब आजाद होकर वापस आया तो इसने आकर ये किताबें पेश की और तकरीबन 100 साल की उम्र में एक लंबी उम्र पाके नेचुरल डेथ, तो भाई मरा। ये वाहिद शागिर्द है 12 में से जो शहीद नहीं हुआ, शहीद करने की कोशिश की, शहीद नहीं हुआ। तो आज के कलाम में से हम चंद बातें सीखेंगे कि इन सारे वाक्य में हमारे लिए क्या सबक है। नंबर वन है इमीडिएट ओबीडियंस, फौरी फरमाबरदारी। कहां, कब? एक तो ये है जब यीशु ने बुलाया पतरस और यूहन्ना याकूब को, कहा मेरे पीछे हो लो। फौरन आपने पढ़ा है, जो हमने आज पढ़ी थी, फौरन अपने बाप को, जानों को, कश्ती को, मजदूरों को छोड़ के मसीह के पीछे हो गए। जब कभी खुदा आपको बुलाए किसी खिदमत के लिए, फौरन ओबीडियंस करें। अगर खुदा बुलाए तो कहें ओके सर, ठीक है खुदा सेंड मी, आई विल गो। आपको बाइबल में याद है किसी ने कहा हाँ खुदा मैं तैयार हूं, मुझे भेज। यशायाह ने कहा था, जब कहा गया छठे बाब यशायाह में क्या, हमारी तरफ से कौन जाएगा? यशायाह ने कहा मैं हाजिर हूं, मुझे भेज। इधर जो यूहन्ना है फौरन ओबीडियंस की किसी के पीछे हो गया। ये पहली खूबी। दूसरी खूबी मोहब्बत और तरस। वो शागिर्द जो अपने बारे में कहते हैं कि वो शागिर्द जिससे यीशु मोहब्बत करता था। अब सुनिए, अगर कोई ये सोचे कि मुझे फलां शख्स बहुत मोहब्बत करता है तो आप क्या करेंगे? आप भी करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये समझूं कि जो भाई विलियम है मुझे बहुत मोहब्बत करते हैं तो मैं क्या करूंगा? मैं भी बहुत करूंगा। इसका मतलब है अगर ये समझता है कि यीशु से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है तो ये खुद भी सबसे ज्यादा यीशु से मोहब्बत करता था। और उसके तीनों खतूत जो है, यूहन्ना का पहला खत, दूसरा खत, तीसरा खत मोहब्बत से भरे हुए। इन तीनों खतूत को हम कहते हैं मोहब्बत के खतूत, और तीनों के राइटर को कहते हैं मोहब्बत का रसूल। बोले हालेलुया। और इसने मोहब्बत की थी कि अपनी जान की परवाह ना की। जब पता चला कि तेज चलते हुए, जलते हुए, कड़ते हुए कड़ा में तेल में डाल दिया जाएगा, उस वक्त कोई इनकार कर सकता था, नहीं किया, डाल दिया। और ये मोहब्बत ही थी। मोहब्बत के बगैर कौन किसी के लिए जान देता है? यीशु ने क्यों आपके लिए जान दी? हेलो, क्यों नहीं? क्योंकि मोहब्बत थी। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक न होकर हमेशा की जिंदगी पाए। मोहब्बत थी तो जान दी। मोहब्बत के बगैर कोई किसी के लिए जान नहीं देता, मोहब्बत के बगैर कोई आना भी नहीं देता। ठीक है, तो ये मोहब्बत थी। दो आयतें मैं पढ़ना चाहता हूं जिससे पता चलेगा कि यूहन्ना मोहब्बत से भरा हुआ था। आपने तीनों खत, छोटे छोटे खाते यूहन्ना के तीनों पढ़ने हैं। पहला यूहन्ना 3:16 आया। यूहन्ना 3:16 तो सबको याद है, लेकिन पहला यूहन्ना 3:16 आया। हमने मोहब्बत को इसी से जाना है कि उसने पहले हमारे वास्ते जान दे दी, और हम पर भी भाइयों के वास्ते जान देना फर्ज है। वो कहते जब उसने हमारी जान दी, हमें भी अपने भाइयों के लिए जान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये भाई का मतलब क्या है? भाई मिशन। इसका मतलब कलीसिया के लोग, इसका मतलब है मसीह पर ईमान लाने वाले, इसका मतलब जो खुदा के बेटे हैं, जो मसीह पर ईमान लाए हैं, आपस में भाई हैं, भाइयों के लिए जान भी देनी पड़ी तो दे दे, क्योंकि मसीह ने पहले जान दी है। ये यूहन्ना लिखता है। फिर पहले यूहन्ना 3:18 आया, लिखा है बच्चों हम कलाम और ज़बानी से नहीं बल्कि काम और सच्चाई के जरिए से भी मोहब्बत करें। कहते गल्ला करना नहीं कि आई लव यू, आई लव, ऐसे लोग कहते रहते हैं फोन पे आई लव यू, होती नहीं अंदर से। कहता बातों से नहीं, सिर्फ ज़बानी से नहीं, आपके कामों से पता चले, सच्चाई से पता चले कि आपके अंदर मोहब्बत है। मोहब्बत आपके अंदर से झलके नजर आए, सिर्फ कहने से नहीं, सिर्फ कलाम से नहीं, बातों से नहीं, आपके अंदर से मोहब्बत नजर आए। ये दो आयतें बड़ी खूबसूरत है, दो आयत जो बयान करती है कि किस कदर ये
मोहब्बत से भरा हुआ शख्स। नंबर 3, मैंने 2 बातें बयान की हैं। नंबर 1 खूबी क्या है? आप बोलेंगे नंबर 1 शाबाश। नंबर 2 मोहब्बत में वफादारी, और मोहब्बत का रसूल है मोहब्बत के साथ ये नाम का वफादार। तीसरी बात, ऐसा इंसानी में वफादारी, दुख देख के भाग नहीं गया, तेल के जलते हुए कड़ाह को देखकर यीशु मसीह का इनकार नहीं कर दिया। करीबन 80-85 साल में, तकरीबन 95 साल की उम्र में तेल के कड़ाह में डाला गया। इसके बाद पतमस के जजीरे में भेजा गया, फिर भी वफादार था। चौथी बात, ये बड़ी खास बात है, सुनने वाली है, सुनिए। आपको याद है मैंने कहा था कि इसको कहा जाता है सन्स ऑफ थंडर, नहीं याद आया आपको? गरज के फजा। किस किस को पता कि कौन से 2 बंदों के बारे में कहा था? यूहन्ना और याकूब, दोनों भाइयों के बारे में। इसका तो बड़ा जोशीला था, देखिए राइट, मार दिया गया यीशु ने। ऐसा था, अगर यीशु को किसी ने कुछ कहा, देखी जाएगी, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इस किस्म की का ये शब्द था शुरू में। और ऐसा हुआ कि एक दफा सामरिया के लोगों ने मसीह पर सख्ती करना शुरू की, तो यूहन्ना और याकूब यीशु से कहते हैं, यीशु हम तेरे शागिर्द हैं, हमें ऑर्डर कर, हम बाप से कहते हैं वो आग नाज़िल करके तू सब कुछ ला देगा। यीशु ने किस की बात करते हो? यानी ऐसा शख्स था, पहले जज्बाती, और जब मसीह के पास आए तो मसीह के लिए जान देने के लिए बोले हालेलुया। ये मुकाशवा ये लिखा है, जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। ये वही जो मैंने जोशीला। तब्दीली क्या है? पहले अगर आप मसीह के पास आए हैं, बड़े जोशीले हैं, अच्छी बात है, और मसीह के की खैरत में कुछ ना कुछ कर देना चाहते हैं, गलत काम भी कर देना चाहते हैं। जैसे अगर कोई जुलूस निकलता है मसीहियों के खिलाफ, कोई कानून पास होता है, लोग जुलूस निकालते हैं, जाके आग लगाते हैं, जाके गालियां देते हैं, हुकूमत को बुरा भला कहते हैं। ये गलत है, ये जोश है, ये सन्स ऑफ थंडर वाली बात है। हलीम हो जाए और कहे खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपकी मदद करे, मसीह की मोहब्बत पेश करे। और फिर आखिरी बात आज के लिए, ये मसीह की आमद का मुंतज़िर था। आज के लिए आखिरी बात क्या है? सब बोलिए, मसीह की आमद का मुंतज़िर। इंतजार करें, मसीह आने वाला है। ये इंतजार कर रहा था। आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु का इंतजार करें, वो जल्द आने वाला है। बोले हालेलुया, कहिए हालेलुया, यीशु जल्द आने वाला है, उसका इंतजार कीजिए। कितने हैं जो चाहते हैं कि आज का कलाम उनकी जिंदगियों के लिए बाइसे बने? कहिए, हाथ खड़ा कीजिए और फिर मेरे पीछे बोले, ऐ खुदावंद, आज का कलाम मेरे लिए बाइसे बरकत हो। जो खूबियां यूहन्ना में थी, मुझ में पैदा कर, हम में पैदा कर।